تو اس سے اچھی کیا بات ہو سکتی ہے؟ یہ شہر جو ہے وہ 90% سے زیادہ سندھ کی حکومت کے ریونیو دیتا ہے، تو میرے خیال میں تو 800 ارب ویسے ہی یہ شہر جو ہے وہ ڈیزرو کرتا ہے کہ سندھ کی حکومت لگائے، لیکن چلیں وہ ان کا فیصلہ ہے۔ تو ہم اس بحث میں نہیں پڑنا چاہتے، ہمیں یہ دکھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم سندھ کی حکومت سے زیادہ کر رہے ہیں، صرف سچ بولیے، جو بات ہے اتنا بتائیے، کیونکہ میں پھر دوبارہ دہراؤں گا، اگر یہ کامیاب ہوگی، کاوش کامیاب ہوگی، تو وہ اس وجہ سے نہیں ہوگی کہ ہم نے کوئی نئے منصوبے ڈھونڈ لیے ہیں، یہ اس وجہ سے نہیں ہوگی کہ ہمارے پاس فنڈنگ کے لیے کوئی نئے ذرائع آ گئے ہیں، یہ اس وجہ سے بھی نہیں کامیاب ہوگی کہ کوئی مانیٹرنگ کمیٹیز بنا دی گئی ہیں، یہ کامیاب صرف اور صرف اس صورت میں ہوگی اگر پاکستان کے تمام ریاستی ادارے، پاکستان کی حکومتیں، چاہے وہ وفاق کی ہوں یا صوبے کی ہوں، وہ اس بات کا ادراک ہو ان کو کہ یہ شہر جو ملک کا سب سے بڑا شہر ہے، جو ملک کا فائنینشل سینٹر بھی ہے، صنعتی سینٹر بھی ہے، جو سب سے زیادہ ریونیو دینے والا شہر ہے، اگر یہ شہر فعال نہیں ہوگا، اگر اس کے عوام کی ضروریات پوری نہیں ہوں گی، تو پاکستان ویسے ترقی نہیں کر سکتا جیسی ہم سب کی خواہش ہے۔ یہ، اور میں نے 2 دن پہلے بھی یہ کہا تھا، مجھے سارے پیغام پاکستان سے آ رہے ہیں، صرف کراچی سے نہیں، سارے پاکستان سے پیغام آ رہے ہیں، اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی خدا کا واسطہ کراچی کے لیے کچھ کریں، کیونکہ پاکستان کے عوام سمجھتے ہیں کہ کراچی کا حق اس کو نہیں ملا، اور کراچی کی اہمیت بھی سمجھتے ہیں۔ ہم اس جذبے سے ساتھ بیٹھے ہیں، اور آج بھی ساتھ بیٹھے ہیں۔ ہم یہ کوئی نہیں کہہ رہے کہ انہوں نے کوئی، بلاول صاحب نے کوئی بیان دے دیا، لیکن میں نے کہا کہ اس سے پہلے میں سچی بات بتاؤں، میں نے سوچا، میں ڈبل مائنڈڈ تھا کہ یہ کروں میں پریس کانفرنس یا نہ کروں، پھر میں نے یہ فیصلہ کیا کہ اگر ہم نے بالکل ہی شروع کے اندر اس بات کو واضح نہ کر دیا تو ہو سکتا ہے کہ کل اور زیادہ مشکلات پیدا ہوں، اور یہ نہ ہو کہ کوئی خدا نہ خواستہ کہ یہ جو ایک بہت بڑی کاوش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ جو ہے وہ ریل کی پٹری سے اتر جائے۔ تو اس لیے ایک دفعہ پھر یہ کراچی کے عوام کا حق ہے، یہ کراچی، سندھ صوبے اور پاکستان کی لیڈرشپ کا فرض ہے کہ یہ قرض جو کراچی کے اوپر بنتا ہے اس کو اتارا جائے۔ اس کو کرنے کے لیے کوئی سیاست نہیں ہے، میں دوبارہ ریپیٹ کروں گا، کوئی سیاست نہیں ہے، اس کام کے اندر مشترکہ طور پر ہم کام کرنے کو تیار ہیں۔ خدا را اس اسپرٹ سے کام کیجئے، آپ بھی مانتے اور ہم بھی مانتے کہ کراچی کی صورتحال وہ نہیں ہے جو ہونی چاہیے۔ آپ ایک قدم آگے بڑھائیں گے، ہم 2 قدم آگے بڑھائیں گے، لیکن ساتھ ساتھ اس بات کو بھی ذرا ذہن میں رکھ لیجئے کہ یہ نہیں ہوگا کہ سیاسی پوائنٹ سکورنگ ہو، یہ نہیں ہوگا کہ حقائق کو مس کر کے بتایا جائے اور ہم خاموش رہیں۔ تو آپ کے لیے جیسے ہمارے آفر کل بھی تھی، آج بھی ہے، امید ہے میری ان تمام میٹنگ میں نے پہلے بھی کہا ہے، چیف منسٹر سندھ نے بڑی مثبت سوچ کا مظاہرہ کیا ہے، میں آج پھر دہراؤں گا، وہ ایک مثبت سوچ کے ساتھ چل رہے ہیں، اور امید ہے کہ ان کی لیڈرشپ بھی ان کو اسی مثبت طریقے سے کام کرنے دے گی اور اس مثبت سوچ کے اوپر عمل درآمد کا موقع دے گی۔ میں اب ریکویسٹ کروں گا امین الحق صاحب سے، ہمارے اتحادی بھی ہیں، کراچی کے بڑے دیرینہ سیاسی ورکر بھی ہیں، وفاقی وزیر بھی ہیں، ایم کیو ایم کے ایک اہم لیڈر ہیں، ایم کیو ایم کا نقطہ نظر بھی سامنے آ جائے، اور پھر علی زیدی صاحب جو ہیں ہمارے وفاقی وزیر جو ہیں، اور تحریک انصاف کراچی کے شعلہ بیان مقرر، اگر میں ان کو کہوں تو ان سے میں درخواست کروں گا کہ آخری الفاظ، اور علی اسی اسپرٹ میں جس میں ہم نے بات کی، ٹھیک ہے؟ بہت شکریہ اسد بھائی نے جو بات کی، میں سمجھتا ہوں کہ اس حد تک مناسب بات کی اور ہم اس سے متفق بھی ہیں، لیکن ساتھ ساتھ ٹھیک ہے، اب ماشاءاللہ آل گڈ۔ اسد عمر صاحب نے جو بات کی ہے، میرا خیال ہے کہ بہت ہی مناسب بات کی ہے، جمہوری طریقہ کار کے عین مطابق بات کی ہے، لیکن چند چیزیں میرا خیال ایم کیو ایم کا پوائنٹ آف ویو ہے میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ 1.1 ٹریلین کا جو ترقیاتی پیکج کراچی کے لیے دیا گیا ہے،
तो इस बात को वाज़ेह तौर पे नोट कर लिया जाए कि ये कराची के ऊपर कोई एहसान नहीं है। ये 1.1 ट्रिलियन का जो पैकेज है ये कराची के ऊपर कोई एहसान नहीं है, ये कोई इमदादी पैकेज नहीं है, बल्कि ये तरक्याती पैकेज है जो कि कराची के अवाम को उसका हक दिया जा रहा है। और आप सबको पता है कि जैसा इन्होंने असद उमर साहब ने फरमाया अभी कि कराची मिनी पाकिस्तान है, माशी हब है, और इसी हवाले से आज अगर अगले 3 साल में कराची पे 1.1 ट्रिलियन पैसे लगाए जाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला उसके अगले 3 साल में 3.3 ट्रिलियन कराची कमाकर इस मुल्क को देगा। तो इंशाअल्लाह ताला इस बात की जो तरीक़ेकार अपनाया गया, बिलखसूस मैं समझता हूँ कि माजी की कोताहियों गलतियों को देखते हुए जो सेफ्टी गार्ड लगाए गए हैं, बिलखसूस के पैसे ट्रांसपेरेंसी के साथ खर्च होना और दूसरी चीज़ टाइम लाइन, ये दोनों चीज़ें रखी गई हैं। और वर्क को एग्जीक्यूट करने पे डिस्ट्रीब्यूशन भी कि वफाकी हुकूमत क्या करेगी और सूबाई हुकूमत क्या करेगी। तो मैं समझता हूँ कि इससे इसके वायदा तौर पे नताइज नज़र आएंगे और दूसरे माजी में होने वाले तमाम जो इमदादी पैकेज या तरक्याती पैकेज कराची के लिए दिए गए थे उससे मुख्तलिफ साबित होगा। और सबसे अच्छी बात क्या है इसके अंदर कि इसके अंदर वफाकी हुकूमत यानी MKM पाकिस्तान, PTI, सूबाई हुकूमत और इसके साथ साथ मुक़्तदर हल्के और उनके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन भी यहाँ पर मौजूद है। तो ये तमाम जो लोग हैं ये एक पेज पर मौजूद है, इंशाअल्लाह ताला चीज़ें आगे की तरफ बढ़ेंगी। इसके साथ साथ कल MKM पाकिस्तान की वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से मुलाकात भी हुई है और चूँकि MKM पाकिस्तान एक बड़ी स्टेक होल्डर है शहर की, तो उस सिलसिले में और MKM आप सबको पता है कि 2018 में जो MKM पाकिस्तान और PTI में MOU साइन हुआ था उसमें एक बुनियादी नुक्ता था सेंसस के हवाले से। हमने कल प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को भी बताया कि सेंसस के हवाले से MKM की अपनी ऑब्जर्वेशन है और हमें बड़ी खुशी की बात भी है कि आज से चंद महीना पहले सेंसस के ऊपर एक कैबिनेट कमेटी भी बनाई है और कमेटी के गालिबन जो कन्वेनर है अली जैदी साहब हैं, उसमें मैं भी मेंबर हूँ। तो हमारी ख्वाहिश होगी कि कराची के अवाम को सही तौर पे जीना जाए। आप सबको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस साहब की क्या ऑब्जर्वेशन थी, कराची की आबादी 3.5 करोड़ है और तमाम NGO तक के जो सेनेट में मेरा ख्याल ताज अदर साहब का अपना बयान मौजूद है कि कराची की आबादी 2.5 करोड़ से ज़्यादा है। तो हमारी ख्वाहिश होगी कि जो 5% ऑडिट MKM पाकिस्तान ने MOU पे साइन किया है, इंशाअल्लाह ताला इसको अगले चंद हफ्तों में हमारी कमेटी बैठेगी और हम काफ़ी हद तक आगे बढ़ भी चुके हैं। इंशाअल्लाह ताला इस पर भी अमल दरामद कराने की कोशिश की जाएगी। साथ साथ इन प्रिंसिपल मैं समझता हूँ कि आर्टिकल 140A के हवाले से जो लोकल गवर्नमेंट एक्ट है, इसमें जहाँ MKM पाकिस्तान पिछले 2 साल से सुप्रीम कोर्ट में अपनी पिटीशन दायर की हुई है, हमारे रिक्वेस्ट पे बड़ी ऑनर की बात है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनवरी में, जिसमें असद उमर भाई भी शामिल थे, उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दाखिल की हुई आर्टिकल 140A के हवाले से। होपफुली अटॉर्नी जनरल ने गालिबन अगले हफ्ते उसको फिक्स करने की तैयारी मुकम्मल कर ली है, तो आर्टिकल 140A के हवाले से एक फ़ैसला होगा। क्यों फ़ैसला होगा? क्योंकि हमेशा हम वाज़ेह तौर पे हमेशा ये बात कहते चले आए हैं, कोई एग्री करे या ना करे, कि जो लोग कहते हैं कि मेयर नाकाम हो गया, हम कहते हैं मेयर नाकाम नहीं हुआ है, बल्कि 2013 का लोकल गवर्नमेंट एक्ट नाकाम हुआ है। इसलिए हमारी ख्वाहिश होगी कि उस लोकल गवर्नमेंट एक्ट में तब्दीली की जाए। मेरा ख्याल है हमारी वफाकी हुकूमत हमें कंट्रीब्यूट कर रही है, हमारे साथ खड़ी है और उनका भी सेम आइडिया मौजूद है और इस सिलसिले में हमारी डिस्कशन वज़ीर सिंध से भी हुई है। वो भी बड़े फरागदिल थे, आज से 2 दिन पहले भी, इससे पहले भी जितनी मुलाकातें हुई उनके ध्यान में भी है कि चीज़ों में तब्दीली लाई जाए और वाज़ेह तौर पर नज़र आए कि आने वाले एडमिनिस्ट्रेटर को या आने वाले जो भी मेयर हो उसके पास वाज़ेह तौर पर इख्तियारात हो। और इस बात को भी मैं क्लियर कर लें कि हम सिर्फ कराची की बात नहीं करते, कराची के मेयर के लिए MKM फरागदिली का मुजाहरा करते हुए कहती है कि ये तमाम इख्तियार जो कराची के मेयर को मिले वो लाड़काना के मेयर को भी मिले, वो सक्कर के मेयर को भी मिले, वो लाहौर के मेयर को भी मिले, ताकि तमाम लोग अपने मसाइल अपने घर के दरवाजे के सामने हल कर सकें। इसी तरीके से मेरा ख्याल है कि पिछले 30-40 सालों से हम देखते हैं तो आम तौर पे किसी भी जमहूरी हुकूमत के दौर में लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन नहीं हुए। जहलत के दौर में इलेक्शन हुए और उसके बाद परवेज़ मुशर्रफ के दौर में इलेक्शन हुए, और ये 2015 को जो इलेक्शन हुआ ये आप सबको पता मुझसे ज़्यादा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के डायरेक्टिव पे हुए।
सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने डायरेक्टिव दिया और एक के बाद जब कंडेम ऑफ कोर्ट में गए तो गालिबन कराची में 5 दिसंबर 2015 को इलेक्शन हुआ। तो हमारी ख्वाहिश होगी कि जो आइन में जो दिन मुतय्यन 120 दिन, उसके बाद फौरी तौर पर न सिर्फ कराची बल्कि पूरे पाकिस्तान में जो तरीक़ेकार है उसके मुताबिक लोकल गवर्नमेंट का इलेक्शन भी कराया जाए, ताकि अवाम को थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट के ज़रिए और जो उनके मसाइल, बुनियादी मसाइल हैं, वो भी हल किए जा सके। और यकीनन हम वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की भी शुक्रगुज़ार हैं कि कल वो तशरीफ़ लाए और एक बड़े पैकेज का ऐलान किया, और इंशाअल्लाह ताला न सिर्फ ये बल्कि मुस्तक़बिल करीब में मैं समझता हूँ कि इलेक्ट्रिक का भी एक बड़ा अहम मसला है। वी आर वेरी मच ग्लैड, मैं समझता हूँ पूरे कराचाइज के लोग खुश थे कि कल असद उमर ही वेंट टू द कराची ऑफिस, और हम कोशिश करेंगे कि जो एग्रीमेंट के ने गवर्नमेंट जो एग्रीमेंट साइन किया हुआ उस पर हर सूरत पे अमल दरामद को मुमकिन बनाया जा सके और कराची के अवाम को बिजली के लो शेडिंग से निजात दिलाई जा सके, और साथ साथ जो ओवर बिलिंग कराई जा रही है कराची के अवाम से उसकी भी खात्मा मुमकिन बनाया जा सके। बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो एज ए कराचीआइट मेरे ख्याल में कराची के लोगों को एक बड़ा रिलीफ मिला होगा ये सुन के कि फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो अलग अलग जमातें हैं वो मिल के इसको करने जा रही हैं। और मैं असद उमर साहब का भी और बाकी जितने भी लोग थे, अमीन भाई आपका भी कराची की तरफ से, आप दोनों हैं कराचीआइट, लेकिन एज ए कराचीआइट मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि बड़े अच्छे माहौल में ये मीटिंग्स कंडक्ट की गई। सियासी बयानबाजी शायद कम हुई बाहर, और अगर जिस माहौल में अगर स्पिरिट से काम करें और ये मॉनिटरिंग रखें तो शायद ये कराची का शहर जो अपना पोटेंशियल है, अगर उसका खाली 50% भी अचीव कर ले तो पूरा मुल्क बदल जाएगा। कल एक ट्वीट के जरिए जो आपने चैनल पे चला दी वो ब्रेकअप भी दे दिया था कि 1.13 ट्रिलियन का कि वो कैसे स्पेंड होंगे। असद उमर साहब ने आपको बता दिया है कि किसका क्या कंट्रीब्यूशन है, तो जितनी भी सराइयाँ हो रही थी वो ख़त्म हो जाएं। लेकिन मैं 2-4 बातें करना चाहता हूँ, और एक ये क्लियर कर देंगे पिकिक एक बनी है, वो भी प्राइम मिनिस्टर ने कल बता भी दिया आपको दोबारा। ये है प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन कमेटी, इसमें सारे लोग हैं और वो बैठ के फिर ये सारी चीज़ों को, इसकी ट्रांसपेरेंसी, वे फॉरवर्ड, तरीक़ेकार, सारी चीज़ों को इसमें एक डिस्कशन के बाद ही आगे बढ़ेंगे। लेकिन मैं आज एक दरख्वास्त करना चाहता हूँ सिंध हुकूमत से, और कल सीएम साहब ने मीटिंग में जब प्राइम मिनिस्टर के साथ थे तो एक बड़ी उन्होंने और भी एक कुछ फैक्ट्स बताए जो हमें पता थे, और जैसे कि मैं कहता रहा हूँ हमेशा कि मीडिया की पेनिट्रेशन कराची में है, क्योंकि कराची फाइनेंशियल कैपिटल भी है, बड़ा शहर भी है, आप सबके हेड ऑफिस भी यहाँ हैं और आप लोग पहुँच भी जाते हैं, और आप लोग असल में तो फ्रंट लाइन आप लोग हैं। अक्सर बल्कि ज़्यादा दफ़ा लॉ एनफोर्समेंट या पॉलिटिशियन से पहले वहाँ मीडिया पहले पहुँचा होता है। होना तो ये चाहिए कि मिनिस्टर को पहले पता हो जाए कि उसके, या हुकूमत को पहले पता हो जाए कि उसके इलाके में क्या हो रहा है। वो अक्सर मीडिया से पता चल रहा होता है, बिकॉज यहाँ का सिस्टम वो मीडिया बड़ा एक्टिव है। तो ये आप लोग हमेशा से फ्रंट लाइन रहे, जो भी कराची के हालात पिछले 20-30 साल से रहे, हमेशा आप पहले पहुँच गए। अफसोस सिर्फ यह है कि यही मीडिया की पेनिट्रेशन बाकी अंदरूनी सिंध में नहीं है। तो कल सीएम साहब ने एक प्राइम मिनिस्टर के सामने जब कराची की पूरी बात हुई तो सिंध के, सदर्न सिंध के और जिलों की बात की। उन्होंने बताया कि 20 डिस्ट्रिक्ट्स माने 20 डिस्ट्रिक्ट्स जो है वो कैलामिटी एरियाज डिक्लेयर कर दी हैं सिंध हुकूमत ने। कोई 136 से ज़्यादा लोग वफात पा गए हैं, कुछ 46,000 मवेशी, माल मवेशी का नुकसान हो गया है, और शुगर क्रेन, कॉटन, जो भी सारा क्रॉप था वो सारा तबाह हो गया है। और सबसे ख़तरनाक बात उन्होंने एक और बताई कि ये सीएम साहब ने बताया कल कि 2.3 मिलियन माने 23 लाख लोग होमलेस हो गए, डिस्प्लेस हो गए, उनके घर बह गए या उनके गांव में पानी आ गया है और रोडों पे हैं। तो देखें जी, कराची भी सिंध का उतना ही हिस्सा है जितना सक्कर है, जितना हैदराबाद है, जितना मीरपुर खास है, जितना लाड़काना है, जितना नवाबशाह है। ये 5 और डिविजन्स की मैंने आपको नाम बता दिए। वो भी उतने ही पाकिस्तानी हैं
जितने कराची के लोग पाकिस्तानी हैं। क्योंकि मीडिया की हाईलाइट कराची की थी, कराची के से वजीर हैं, प्राइम मिनिस्टर का कराची आना ज़्यादा होता है, पूरी सिंध की काबीना कराची में रहती है, तो ज़बरदस्त काम इंशाल्लाह कराची के लिए होने जा रहा है। मैं सीएम साहब से उनकी बात सुन के बड़ा और प्राइम मिनिस्टर साहब ने फिर असद साहब को शायद कल कहा भी कि सीएम साहब उनको लिख के सारा भेजें कि हम वहाँ फेडरल गवर्नमेंट आपकी कैसे मदद कर सकते हैं। और बिलावल साहब भी मैं कल से देख रहा हूँ रोडों पे घूम रहे हैं ये बताते हुए कि जी फेडरल गवर्नमेंट को बाकी अंदरूनी सिंध में भी कुछ हेल्प करे। वो कहते जा रहे हैं कभी इस रोड पे थे कभी उस रोड पे थे, अच्छी बात है, शुक्र है निकले वो। मैं बड़ा खुश हुआ देख के बिलावल रोडों पे। मैं सीएम सिंध से एक मुतालबा करना चाहता हूँ कि जो ये 6 जिला हैं, हैदराबाद, मीरपुर खास, नवाबशाह, सक्कर, लाड़काना, कराची की तो बात हो गई, ये जो 5 हैं ये कराची से कम नहीं है। वहां जो लोग रहते हैं वो कराची से या कराची के लोगों से कम पाकिस्तानी नहीं है, बराबर के पाकिस्तानी हैं। और आपने बहुत अच्छी तरीके से यह बात को कल प्राइम मिनिस्टर के सामने बताया। तो मेरी आपसे दरखास्त है कि अगर आप कराची का एडमिनिस्ट्रेटर एक 21 ग्रेड का अफसर लगाते हैं, डीएमजी ऑफिसर, तो यह बाकी जिलों में जो आप एडमिनिस्ट्रेटर लगा रहे हैं ये फिर 17, 18, 19 ग्रेड के मत लगाएं, उनको भी इतनी ही स्ट्रेंथ दें, वहां भी 21 ग्रेड का एक ऑफिसर लगाएं ताकि वो भी वो रिप्रेजेंट कर सकें। क्योंकि अगर आपने लगा दिया प्रोविंशियल कार्डर का कोई आदमी जो 18 ग्रेड का, 19 ग्रेड का है, उसकी इतनी एक्सपोजर ही नहीं है और वो तो पहले से वहां काम कर रहा है। तो वो आप चाहते हैं कि अगर फेडरल गवर्नमेंट आपकी मदद करे, और फेडरल गवर्नमेंट चाहती है एज पर प्राइम मिनिस्टर यस्टरडे कि आप बताएं, कल उन्होंने कहा है कि जहां जहां मदद कर सकते करेंगे और उस पर भी डिटेल करेंगे, तो वहां के एडमिनिस्ट्रेटर भी आपको तगड़े 21 ग्रेड के ऑफिसर लगाएं। और मैं ये भी चाहता हूं, मुझे भी पता है कि बहुत सारे 21 ग्रेड के ऑफिसर जाना नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि इस्लामाबाद रहे या कराची रहे या लाहौर है बड़े। उनसे भी मैं दरखास्त करूंगा कि आप ये जो एडमिनिस्ट्रेटर का जब तक लोकल बॉडीज नहीं होते और चीज़ों को ठीक कर रहे हैं, और ख़ास तौर पे जब कैलामिटी डिक्लेयर हो गई है तो ये बाकी सिंध के लोग भी हो, बहुत सारे लोग आप उधर ही से आए हैं, आपके अक्सर गांव लोगों के बैग हैं, लेकिन जब आदमी बड़ा हो जाता है वो कहते हैं वजीर बन जाता है तो उनके फोन, लोगों के फोन नहीं उठाता, हल्के वालों के, बाकी लोग भी नहीं उठाते। तो मैं आपसे दरखास्त करूंगा कि आप अपने आप को खुद पेश करें जाके कि जी हम जाके यहाँ इंटीरियर के इलाकों में सर्व करेंगे। और आपने जो तजुर्बा कमाया है अपनी पूरी पॉलिटिकल, क्योंकि 21 ग्रेड में पहुंचे तक 28, 29 साल आप लगा लेते हैं, तो आपने जो सारा तजुर्बा पूरे सारे डिपार्टमेंट में रहा है उसको अप्लाई करें और उन इलाकों में भी वैसे काम को तेज करें, इंटीरियर सिंध के उन इलाकों में जिस तरह इंशाल्लाह आप कराची में काम तेज होने लगा। क्योंकि कराची का जो 3 साल का पैकेज है ये सारे 1.13 ट्रिलियन रुपीस 3 साल में डिप्लॉय होने हैं, और 3 साल में आपको कराची की इंफ्रास्ट्रक्चर में भी चेंज नजर आएगी। इमीडिएट आज से मतलब शुरू है काम। तो ये काम इंटीरियर में भी करना है, अंदरून सिंध भी करना है। अच्छा, मैं आपको वो भी बता दूं, आज भी मेरी प्राइम मिनिस्टर के साथ एक्सचेंज हुई थी, कल यहाँ पर भी बात हुई थी इसके ऊपर। तो वज़ीर आज़म जो है वो इंशाल्लाह ताला इसके ऊपर खुसूसी मीटिंग बुलाने वाले हैं, प्रॉब्ली इंशाल्लाह कल ही होगी, क्योंकि बारिश से और सैलाब से तबाहकारी जो है वो बढ़ती जा रही है। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हुई है, सिंध के कई अजला के अंदर हुई है, कराची का तो ज़ाहिर जिक्र हो चुका है, बलूचिस्तान के अंदर हुई है, और अभी खदशा ये है कि कुछ इलाके पंजाब के जो हैं शायद वो भी ज़ेर-ए-आब आ सकते हैं। तो वज़ीर आज़म जो है इस सूरत हाल को देखने के लिए एक खुसूसी मीटिंग भी बुलाएंगे, और जो फौरी तौर पर रिलीफ के इक़दामात हैं उनके भी अहकामात जारी करेंगे, और जो लोगों का नुकसान हुआ है उसके ऊपर भी फिर देखा जाएगा कि किस तरीके से मदद की जा सकती है। तो ये भी मैंने कहा आपको बता दूं कि वज़ीर आज़म ने खुसूसी तौर पर इसके लिए भी हुक्म जारी कर दिए हैं कि फौरी तौर पर उसके लिए भी मीटिंग बुलाई जाए। कराची में वफाकी वज़रा असद उमर, अली ज़ैदी और अमीनुल हक मीडिया से बात कर रहे हैं, और असद उमर की जानिब से कहा गया कि कराची के तारीखी पैकेज पर अमल दरामद के लिए सियासत को बाला ताक रखना होगा। कराची के अवाम की ज़रूरत को पूरा करने के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद आप इलाकाई खबरें सुन सकेंगे।
یہ عمران خان فینومینن ہے کیا؟ جیسی بھی صورتحال ہو وہاں سے یہ کم بیک کر لیتے ہیں. عمران بیسیکلی ایک وطنیت آدمی نہیں, وہ از انپرچیزبل اینڈ انکرپٹیبل. بزنس مین اکانومی کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ چیلنجنگ حالات چل رہے ہیں, سچویشن ہے, چیزیں جو ہے انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ بہتری کی طرف گامزن ہوں گی. جو کنڈیشن ہماری